Good morning students. I hope all you are safe at your home. Last time ਆਪਾਂ ohms law डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, resistance डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, resistivity डिस्कस ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ resistance ਤੇ resistance ਦੇ combination ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ series combination and parallel combination ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ देखो सब तो फर्स्ट जो फार्मूला है दैट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR जिन्होंने ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ohms law। ohms law V is a potential difference, I is the current, R is the resistance, and second formula resistance R is equal to rho L by A। ठीक है जी, rho is the resistivity, L is the length, A is the area। rho is resistivity or a specific resistance, length of the conductor, A is the area of cross section, area of cross section। ठीक है, of a conductor। जिसमें ਅਸੀਂ फर्स्ट फार्मूले पुट कर दिए तो फर्स्ट फार्मूले में ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ V is equal to I rho L by A। ठीक है, फर्दर ਤੁਸੀਂ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ Q by T ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ। ठीक है जी, फिर एक मैं लिखना चाहूँगा जो रो है रेजिस्टिविटी, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मैं दोबारा फिर लिखूँगा ताकि ध्यान रहे, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। That means it does not depends upon the dimensions of the conductor, it does not depends upon the length of the conductor, it does not depends upon the area of conductor। ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਇਰ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਇਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1 ਮੀਟਰ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਲੈਂਥ ਉਹਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अगर कॉपर है तो कॉपर की अपनी रेजिस्टिविटी होगी, सिल्वर का अपनी ਉਹਦੀ अपनी रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट फोर फार्मूलाज ये होगी। फिफ्थ फार्मूला है जी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ एरिया मतलब सरफेस एरिया इनटू हाइट। वॉल्यूम V देखो ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਵੀ V ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਿੰਬਲ V ਹੈ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੋਲਿਊਮ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਏਰੀਆ A ਇਨਟੂ H। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਇਰਸ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫॉर एग्जांपल ਆਹ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਵਾਇਰ ਹੈ, मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा मैं, जिहदी कोई ना कोई हाइट H होएगी। हाइट का मतलब ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈਂਥ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਲੈਂਥ L। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਹੈ R ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का की होगा पाई R स्क्वायर, H की जगह ते ਅਸੀਂ ਕੀ यूज करा करेंगे L। तो ए ਦਾ ਕੀ ਹੈ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ਦਾ फार्मूला। ठीक है जी, ये कुछ फार्मूले ने ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ यूज होंगे। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ सीरीज कॉम्बिनेशन भी पढ़े, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। मैं थोड़ा जिहा दस भी दिना, सीरीज का मतलब होंगे एक रस्ता, मतलब वन वे कह सकते हैं ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਦਾ। ठीक है, तो
ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਜੋ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। इस तरीके नाल असीं रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब एक रेजिस्टेंस है, एक दूसरा रेजिस्टेंस है, एक तीसरा रेजिस्टेंस है। दिस इज कॉल्ड R1 एंड दिस इज कॉल्ड R2 एंड दिस इज कॉल्ड R3। तीनों असीं किसी एक्सटर्नल सैल दे नाल कनेक्ट कर दिए। V वोल्ट पॉजिटिव नेगेटिव। देखो करंट इधर जाऊगा, तो देखो पूरे करंट आई ਨੂੰ फ्लो ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ और सिर्फ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਥਰੂ ਜਾਊਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕਰੇ, दैट इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਰਹੂਗੀ, ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ। ਤਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ I ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ। बट असी पढ़ के आए हैं I इंटू आर की बनता है पोटेंशियल। देखो एक चीज सोच के देखो, अगर मैं कोई पॉइंट ए कंसीडर करा, दिस इज पॉइंट नंबर ए एंड दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। जो तुहानू मैं वीडियो भेजी सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ नहीं समझ लगी ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ मैं एक बार ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। देखो अगर इस रेजिस्टेंस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अगर ਇਹ करंट फ्लो करूगा ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ रेजिस्टेंस भी है, तो I मल्टीप्लाई R, दैट मीन्स ਇਹਦੇ क्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बनूगा, दैट इज नोन एज V1। दैट इज V1। जिवें मैं कहा कि करंट दी वैल्यू फॉर एग्जांपल सपोज कर लो भी 2 एम्पीयर है, तो जो पहला रेजिस्टेंस है सपोज वो 1 ओम है, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ पोटेंशियल बनूगा V1 दैट इज 2 into 1 which is equal to 2 वोल्ट अक्रॉस दिस। फिर वही करंट अगे जा रहे हैं, करंट 2 एम्पीयर ही है क्योंकि रास्ता एक है। रेजिस्टेंस मान लो सेकंड वाला 2 ओम है, तो V2 कितना आएगा, दैट इज I इंटू आर, मतलब 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ अक्रॉस ਦਾ पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। देखो पहला कितना ਸੀ 2 4, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ अक्रॉस कुछ ਹੋਰ ਪड़ेगा। तो ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਰਨਲਾइज रूल बना ਲੈਂਦੇ ਆ कि series combination is that combination in which current is same, the value of current is same, but the value of potential difference across each resistor will be different। तो I की होगी सेम होगी, but जो V है that is different। This type of combination is known as series combination। Okay, इसमें erase कर रहे हैं। अगर तुसी इस दा नेट रेजिस्टेंस मतलब इन्हां तिन्नां नूं हटा के तुसी एक वैल्यू लिखनी चाहते हो तो इन्हां नूं बोलदे असीं फिर नेट रेजिस्टेंस, द कंबाइनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो इत्थे लगदा है सीरीज है तो RS, मतलब इस RS की वैल्यू इन्हां तिन्नां नूं कंबाइन करके बनी है, तो उसका फॉर्मूला की होगा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अप टू प्लस R3। तीन रेजिस्टेंस ने, तीन रेजिस्टेंस ਨੂੰ जोड़ दो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ टोटल रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल जिवें ਆਪਾਂ कंसीडर ਕੀਤਾ ਸੀ कि पहला रेजिस्टेंस 1 ओम है, ये 2 ओम है, मान लो ये 3 है, तो 1 + 2 3 + 3 6, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 6 ओम। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट देखो जी, अगर मैं तुहानू कहा भी ये जिहड़े रेजिस्टेंस ने ये 3 नहीं है, ये 4 है, तो मतलब प्लस R4 करना पऊगा। मैं कहा यार 4 भी नहीं है 5 है, तो मैनू की लिखना पऊगा, तो मैनू R5 भी लिखना पऊगा। मैं कुल मिला के तुहानू कहा भी ये रेजिस्टेंस जिहड़े सर्किट च लगे न N रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो फॉर N डिफरेंट रेजिस्टेंसेस जो सीरीज का फॉर्मूला होएगा दैट इज R1 प्लस R2 प्लस अप टू सो ऑन Rn। दिस इज द फॉर्मूला, मतलब तुसी जोड़ना है बस और कुछ नहीं करना। सीरीज कॉम्बिनेशन मिल गया मतलब ऐड कर दो बस, सिंपल। ओके, अगर मैं तुहानू कहा कि सेम एक सर्किट दे विच असीं एक रेजिस्टेंस लगाया, फिर एक रेजिस्टेंस होर लगाया,
ए ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ R ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ R, ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਗਾਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨੈਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ R + R, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ 2R, ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਤਾ, मतलब R एक होर, फिर आंसर कितना आएगा 3R। फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ 4 ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਗਾਓ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੈ, ਆंसर ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ 4। तो सोच के देखो, अगर 5 लगावांगे तो 5R, अगर 6 लगावांगे तो 6R, अगर 7 लगावांगे 7R, जे n लावांगे तो nR। ਇਹਦਾ मतलब जे n डिफरेंट रेजिस्टेंस वास्ते फार्मूला ये है, तो फॉर n ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ आइडेंटिकल, अगर सिमिलर रेजिस्टेंसेस ने बिल्कुल सेम वैल्यू है तो सीरीज का फार्मूला क्या आएगा, दैट इज NR। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, जनरल फार्मूला ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है जी, आई होप तुहानू क्लीयर हो गया। मैं दोबारा फिर दसना है, सीरीज रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बीनेशन एक अजिहा कॉम्बीनेशन है जिहदे विच करंट नू फ्लो करन दे सिर्फ एक पाथ मिलता है, ठीक है, वो होर किसी डायरैक्शन जो फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो जदों वो एक पाथ फॉलो करता है तो उसनूं असीं बोलते हैं सीरीज कॉम्बीनेशन। तो उस सीरीज कॉम्बीनेशन का यानी कि जो नैट रजिस्टेंस अगर असीं कैलकुलेट करना है तो जिन्ने भी रजिस्टेंस उस सीरीज लगे उन्होंने कर दो, ऐड कर दो। सीरीज दे विच करंट सेम रहिंदा है, पोटेंशियल डिफरेंस की रहिंदा है, अलग अलग रहिंदा है। अगर n आइडेंटिकल रजिस्टर्स ने तो उन्होंने कंबाइन करके फार्मूला की बनूगा NR। ओके, नेक्स्ट 7th सिचुएशन साडे कोल हैगी है जी पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन तो अगर मैं तुहानू कहा कि तुहाडे कोल एक पाइप है, वाटर पाइप, इहदे चों पानी जा रहा है लाइक दिस। इस वाटर पाइप नू तुसीं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता लाइक दिस। जे इस पाइप दे विचों सपोज 10 लीटर पानी जा रहा सीगा, तां एक पाइप असीं लगाई है, एक पाइप मतलब एक पाइप थोड़ी जी की है जिहदा रेडियस स्मॉल है, एक दा की रेडियस स्टार है। तो डेफिनेटली तुसीं कहोगे कि सर इस पॉइंट ते आके इहनूं जंक्शन बोलदे आ, असल च जिथे डिवीजन हुंदी है, इस जंक्शन ते आके सर पानी की है डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक ऊपर वाली पाइप जाऊगा, एक नीचे वाली से जाऊगा, डेफिनेटली जाएगा। इधर में पानी की होगा डिवाइड, कुछ वाटर इधर की है, रास्ता छोटा है तो थोड़ा जा पानी जाऊगा, बाकी का पानी इधर जाऊगा। सपोज मैं तुहानू कहता भी 7 लीटर पानी इधर जा रहा है, 3 लीटर इधर जा रहा है, 10 लीटर आया जी 10 लीटर जा रहा है बट डिवाइड होकर जा रहा है। सेम हुण एक करंट की सिचुएशन ले लो, करंट अगर आएगा, अगर वो 2 पार्ट्स तुसीं डिवाइड करोगे तो मतलब करंट की होगा डिवाइड होगा। अगर वो 3 पार्ट करोगे दैट मीनस करंट की होगा डिवाइड होगा। तो जेड़े सर्किट दे विच करंट डिवाइड हुंदा होवे दैट कॉम्बिनेशन इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। उस कॉम्बिनेशन को असीं की बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो जिवें आपां कह रहे भी आ एक वायर है, ठीक है जी, इस वायर के विचों एक रजिस्टेंस असीं एवें लगाता, एक असीं इदां लगाता, ठीक है, थोड़ा जिहा सौखी डायग्राम बना लें, कुछ एवें करके लाता, एक इत्थे लाता, फिर इन्हां दोनों वायर्स नूं आपस विच कनैक्ट करके इत्थे असीं लगाती एक सैल, इत्थे सैल लगाता, 20 वोल्ट का सैल लगाता। तो पोटेंशियल डिफरेंस उन्होंने मैं की दस्सिया सीगा, पोटेंशियल डिफरेंस होंदा सी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, यही बोले सी आपां। अच्छा कई बच्चे ना मेरे याद आ गया एक मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होंदा EMF, ਉਹਦੇ बारे भी पूछ रहे सीगे, मैं जरूर उन्होंने भी एक अलग तो क्लास लाऊंगा। ये तो आप अलग तो क्लास EMF से लगानी है, एक रजिस्टेंस टैंपरेचर ते किदां डिपेंड हुंदा है ते रजिस्टिविटी टैंपरेचर ते किदां डिपेंड करदी है, एक ਉਹਦੇ ते आप अलग तो क्लास लगावांगे। तो 20 वोल्ट की की है, एक बैटरी सैल लगाया तो इत्थों करंट जा रहा है I, देखो एक रास्ता जा रहा है इस पॉइंट से, दिस पॉइंट इज नोन एज जंक्शन, करंट इधर जा रहा है,
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ R1 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ R2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੋਗਾ डिवाइड। सपोज इधर करंट गया I1, इधर करंट गया I2, तो जंक्शन मतलब I डिवाइड हो गया I1 प्लस I2। अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ 5 एंपीयर ਦਾ ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਫॉर एग्जांपल दिस, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ डिवाइड हो जाए 2 + 3 ਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ डिवाइड हो जाए 3 + 2 ਚ। किधरों करंट ज़्यादा जाऊगा जिधर रेजिस्टेंस की वैल्यू घट होगी, कि आप पढ़े I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर ये रेजिस्टेंस की है स्मॉलर होया दिस ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, तो इधर करंट की है ज़्यादा जाऊगा, इधर रेजिस्टेंस करंट घट जाऊगा, बट दोनों सम की होगा सेम होगा। ओके, इथों करंट जा रहा है I1, इथों करंट जा रहा है I1, फिर जंक्शन से आके की हो गया ऐड हो गया, दैट मींस फिर की हो गया I। यस, तो देखो आ एंड ए आ एंड बी, इन्हां दोनों एंड्स दे अक्रॉस पोटेंशियल की होगा सेम। मतलब कि पैरेलल कंबीनेशन एक अजिहा कंबीनेशन हो गया जिहदे विच कि करंट है जो वो डिफरेंट रहिंदा है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहिंदा। बस ये मेन पॉइंट्स ने। तो अगर असी नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब कंबाइंड रेजिस्टेंस फाइंड करना है, फिर फॉर्मूला है 1/RP। RP डिनोट्स फॉर रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R। अगर दो रेजिस्टेंस लाए ने तो 1/R1 प्लस 1/R2। अगर तीन लगाओगे मतलब एक सपोज ये रास्ते मैं एक 4 लगाना R1 R2 R3, फिर प्लस किया जाएगा 1/R3। मतलब जिन्नियां ब्रांचेस हो जाएंगे उन्होंने तुसी ऐड करी करोगे। ठीक है जी, ओके। रेजिस्टेंस कंबीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो तुसी अगे +2 क्लास जाओगे, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ IIT JEE ਮੇਨਸ है ना, जिन्ने भी ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ एग्जाम्स अगर तुसी दोगे, रेजिस्टेंस के कंबीनेशन ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंटरस्टिंग ने। ठीक है, मतलब जिन्हों के दिमाग के न्यूमेरिकल्स बैठ जाए उन्होंने बहुत ईजी लगते हैं, कुछ भी नहीं, खेडा ने बस। ठीक है, एक बार ध्यान समझना बहुत जरूरी है। ओके, फिर मैं गल करा फॉर n डिफरेंट रेजिस्टेंसेस, केड़ी कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, पैरेलल ही कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा 1/R पैरेलल दैट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू सो ऑन क्या होगा 1/RN। फिर थोड़े जो होर जनरलाइज करते हैं, अगर साडे कोले फॉर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस ने, आइडेंटिकल मतलब सेम वैल्यू वाले, तो मैं तुहानू दो नूं की है सॉल्व करके दिखाना है, फिर तुसी अपने आप को जनरलाइज करना है। दिस इज द 1 नंबर रेजिस्टेंस एंड दिस इज द 2। देखो मैं लिखवा n वास्ते रहा, समझा मैं 2 वास्ते रहा, इजी रहूगा। मान लो यदी वैल्यू आ रहा है, यदी वैल्यू आ रहा है, मैं तुहानू कहा भी ਇਹਦਾ नेट रेजिस्टेंस फाइंड करो, तुसी की कहोगे 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R। R आ गया एलसीएम, ऊपर कितना आ गया 2। इस तो बाद ਇਹਦਾ रेसिप्रोकल करना अक्सर बच्चे भुल जाते हैं। ध्यान रहे तुसी 1/RP कैलकुलेट कर रहे हो, रेसिप्रोकल करोगे तो कितना होगा, दैट इज R/2। तो थोड़ा जिहा जर्नलाइज करने की कोशिश करते हैं। देखो जो दो रेजिस्टेंस आइडेंटिकल ने तो आंसर साडे कोल आ रहा है R/2। अच्छा जो 3 होणगे आइडेंटिकल तो आंसर तुसी चेक करियो R/3 आऊगा। जो 4 आइडेंटिकल होंगे तो आंसर R/4 आएगा। ਇਹਦਾ मतलब अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस ने तो वेरी सिंपल की होएगा जी R/n। आई रिपीट, 2 वास्ते किया R/2, 3 वास्ते तुम सॉल्व करके देखो R/3, 4 वास्ते सॉल्व करोगे R/5, 5 वास्ते करोगे सॉरी 4 वास्ते सॉल्व करोगे R/4, 5 वास्ते सॉल्व करोगे R/5। सिमिलरली जी n आइडेंटिकल होंगे तो क्या होगा R/n। ठीक है जी, एक चीज़ नोट करो, जो पैरेलल कंबीनेशन के देखो एक चीज़ होर दिखाना। ठीक है, ये सारे मैं पहले कंसैप्ट ही करा रहा, इस तो बाद इन्होंने न्यूमेरिकल्स करांगे, कुछ न्यूमेरिकल अज करांगे, कुछ न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर करांगे। देखो सीरीज असी जो नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, मान लो मैं फॉर 2 रेजिस्टेंस की गल कर रहा, फॉर 2 आइडेंटिकल वास्ते कर रहा है, थोड़ा ज़्यादा वधिया समझ लग जाए। आइडेंटिकल रेजिस्टेंस
ਤਾਂ r ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ r plus r that is equal to 2r, very simple। okay, अगर पैरेलल की गल करिए, पैरेलल ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ठीक है। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ फॉर टू आइडेंटिकल रेजिस्टेंस वास्ते ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ r पैरेलल, नेट रिजल्ट लिख रहा मैं, ठीक है। चाहे तुम एवं लिख लो 1/rp इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r। जो इन्हें सॉल्व करोगे तो rp कितना होगा, दैट इज r/2। हुण अगर मैं तुहानूं r की वैल्यू गिवन करदा, फॉर एग्जांपल r हैगा अपने कोले 4 ओम, मतलब एक रजिस्टेंस साडे कोले 4 ओम दा सी, तो सीरीज दे विच आंसर कितना आएगा, दैट इज 8 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस 8 होगा, मतलब एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, ए रेजिस्टेंस 4 ओम दा, ए भी 4 ओम दा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ 8 ਓਮ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ r ਹੈ ਉਹ 4 ਓਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 2 ਓਮ। ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਨਾਲ 2 ਓਮ, मतलब ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਅਗਰ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪੈਰਲਲ ਚ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ r ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ r ਸੀ, मतलब ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 4 ਸੀ, ਇਹ ਵੀ 4 ਸੀ, तो नैट रेजिस्टेंस कितना आया, तो तुम इन्होंने दोनों हटा के एक रेजिस्टेंस लगा सकते हो 2 ओम। तो मेरे कहने का मतलब की है, मेरे समझाने का मतलब ये है कि ध्यान ना देखो कि सीरीज के रेजिस्टेंस ऐड होके ज़्यादा वैल्यू हो जाती है। देखो 2 4 प्लस 4 करके कितना आ गया 8, मतलब पहला तो करंट में 4 ओम का रेजिस्टेंस की है क्रॉस करना पैंदा जी। एक रेजिस्टेंस होड़ दे नाल उहदे लई रुकावट होर ज़्यादा वध गई। इहदे नाल सीरीज कंबीनेशन दे विच ਜਿਹੜਾ टोटल रेजिस्टेंस वो इनक्रीज होता है। अगर रेजिस्टेंस इनक्रीज होगा, इसका मतलब करंट ਨੂੰ फ्लो ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ रुकावट ज़्यादा आएगी। पैरेलल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, रेजिस्टेंस डाउन ਹੁੰਦਾ है, डिक्रीज ਹੁੰਦਾ है। मतलब ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਔਰ ਪੈरेलल ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਟ रेजिस्टेंस ਕਿਸ ਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, पैरेलल ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ rp = ਹੁੰਦਾ r/n। देखो ਇਹਦੇ ਨਾਲ n ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, n ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸੀਰੀਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਸਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਰਨਗੇ, मैं नंबरिंग तो भुल गया कि चल रही थी, ठीक है, मैं तो लिख दें। तो की कहेंगे कि फॉर एग्जांपल यू हैव अ कॉपर वायर जिहदी लेंथ हैगी है L, तो जिहदा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन हैगा वो हैगा A। ओके, तो मैं अगर इसका रेजिस्टेंस तुहानूं पूछां भी आर कितना होगा, तुसीं कहोगे सर रेजिस्टिविटी इसकी कोई ना कोई रो होगी, गिवन होगी, सानूं इसकी कोई ना कोई लेंथ ए दी हुई है, इसका एरिया ए है, तो ये इसका कोई रेजिस्टेंस है। मैं कहूँ ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, तुसीं सही बोलो। हुण आपां नूं सिचुएशन की दिंदे है, सिचुएशन ये कहते हैं कि तुसीं इस वायर नूं, इस कॉपर दी वायर नूं स्ट्रैच करता। सोच के देखो, अगर तुसी एक वायर ਨੂੰ स्ट्रैच करोगे, मतलब ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਵਧੂਗੀ, ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਾਇਰ ਪਤਲੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਰਟਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਲੈਂਥ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, वर्ड लिखा होना जरूरी है, स्ट्रैच किया, तो जो स्ट्रैच करोगे दैट मीनस लेंथ इंक्रीज होगी, एरिया डिक्रीज होगा, बट वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ये मेन कंसैप्ट है। देखो अगर मैं कहा इस वायर को स्ट्रैच करने तो बाद इनू स्ट्रैच करता, तो स्ट्रैच करने तो बाद ये वायर थोड़ी जी पतली हो जाएगी, सपोज इसकी जो लेंथ है वो होगी 2L, तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन मतलब लेंथ मैं L1 लिख रहा नवी, तो जो नवा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन होगा दैट इज A/2। जो इसका वॉल्यूम सीगा पहला वाली वायर का वो किसी अपने को एरिया इनटू लेंथ
जो इहदा वॉल्यूम है ये कितना होगा एरिया दैट इज ए बाई 2 इंटू लेंथ इंटू 2 2 ना 2 कैंसल ए भी कितना हो गया ए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ रेजिस्टेंस वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट जिन्ना एरिया देखो सिंपल देखो वॉल्यूम डिपेंड करता है एरिया ते लेंथ ते अगर एरिया इंक्रीज होएगा तो लेंथ नू की होना पऊगा डिक्रीज होना पऊगा अगर एरिया डिक्रीज हो रहा है तो लेंथ नू दे कंपैरिजन की होना पऊगा इंक्रीज होगा वॉल्यूम नू कांस्टेंट रखना जिवें मैं कहा कि जेड़ा 6 है हाँ 6 मैं लिख सकता 2 मल्टीप्लाई 3 एंड इट आल्सो राइट एज 3 इंटू 2 बना तो 6 ही है ना अगर एरिया 2 है तो लेंथ कितनी है 3 आ रही जे एरिया घट है तो लेंथ ज़्यादा है अगर एरिया ज़्यादा है तो लेंथ घट है ठीक है जी तो हमेशा ध्यान रखना है अगर मोस्टली की स्ट्रैचिंग का केस ही होंगे है ठीक है ਜਾਂ मतलब एक क्वेश्चन होर भी आऊगा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ भी दसूँगा मतलब स्ट्रैच वास्ते ध्यान रखना वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट वॉल्यूम ਦੇ ਵਿੱਚ कोई चेंज नहीं होएगा लेंथ इंक्रीज होगी एरिया घटूगा अगर मतलब कंप्रैस करने वास्ते कहना तो उल्ट कर दो लेंथ घटूगी एरिया मतलब जो लेंथ हाफ हो रही है एरिया डबल हो जाएगी जो लेंथ 3 टाइम्स डिक्रीज हो रही है एरिया 3 टाइम्स की हो जाएगा इंक्रीज होगा ठीक है अगर मैं इसे केस कहा भी एल की जगह पर मैं 3L कर दूंगा तो एरिया कितना होगा A/3 मल्टीप्लाई करके देख लो बस AL बनना चाहिए ओके तो अगर हम इस क्वेश्चन थोड़ा जिहा मैं अगे लेके जावां तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मतलब आफ्टर स्ट्रेचिंग आफ्टर जो स्ट्रेच करने तो बाद तो जिहड़ा दा रेजिस्टेंस आऊगा R1 देखो ये भी वायर तक कॉपर दी है तो रेजिस्टिविटी रो है लेंथ कितनी होगी लेंथ होगी 2L अच्छा एरिया कितना होगा दैट इज A/2 इसका मतलब न्यू रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू रो L अपॉन A2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब 4 इसका R1 इज इक्वल टू रो L बाय A की है दिस इज ओरिजिनल रेजिस्टेंस ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਡਾ आंसर आ गया ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ रेजिस्टेंस ਆ 4 टाइम्स ओरिजिनल ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ इंक्रीज हो गया ठीक है फिर एक ਤਾਂ तरीका ए है फिर एक ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ शॉर्टकट ਉਹ ਲਗਾਇਓ ਜਿਹਨੂੰ मतलब समझ लग जाए ਤੇ याद रहे शॉर्टकट पहला सॉल्व करो इस तरीके नाल शॉर्टकट ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਤੇ यूज करो आर न्यू नवा रेजिस्टेंस हमेशा इक्वल ਹੁੰਦਾ है ओल्ड रेजिस्टेंस दे n स्क्वायर टाइम्स दिस इज अ शॉर्टकट वेयर व्हाट इज n n ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਦੱਸ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ लेंथ 2 टाइम्स इंक्रीज हुई है तो लेंथ अगर 2 टाइम्स इंक्रीज हुई है तो n की वैल्यू 2 पुट करो आंसर कितना होगा 4 अगर मैं सुनूंगा लेंथ 3 टाइम्स इंक्रीज हुई है तो n की वैल्यू 3 होगी कितना आंसर होगा 9 अगर मैं सुनूंगा लेंथ 4 टाइम्स इंक्रीज हुई है तो आंसर कितना होगा 16 अगर लेंथ बढ़ रही है ना तो डेफिनेटली ऐसी कि बड़ा सी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ तो रेजिस्टेंस अगर और लेंथ बढ़ूगी तो रेजिस्टेंस की होगा इंक्रीज होगा ठीक है जी तो बच्चे ये सी अपने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज नाल ही कुछ न्यूमेरिकल्स के कंसैप्ट सीगे तो हुण तुहाडे बुक दे विच अगर जिन्हां कोल बुक है उहदे विच की पोटेंशियल डिफरेंस के क्वेश्चनस होणगे वो तुहाडे हो जाणगे ठीक है जी तो उहदे नाल तुहाडे रेजिस्टेंस दे रिलेटेड जिहड़े क्वेश्चनस ने वो भी तुहाडे हो जाणगे न्यूमेरिकल्स हो जाणगे इस तो बाद अपने रेजिस्टेंस के कॉम्बीनेशन के न्यूमेरिकल्स रह जाणगे ठीक है तुसी कोशिश करनी है मैक्सिमम टू मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व करने की फिर भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व ना होया तो तुसी मैनू की मैसेज कर दिओ मैं एक क्लास मैं भी खुद चाहना भी आप एक क्लास होर इस ते की लगावांगे ठीक है अगर तुहाडे कोई भी डाउट होए वो डाउट तुसी मैनू की मैसेज कर दिओ मैं वो डाउट की तुहानू की इत्थे करवा दांगा ठीक है जी क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनू आप एज इट इज़ नहीं छड़ सकते है ठीक है कोशिश करो वैसे तो सारे न्यूमेरिकल जो मैं कंसैप्ट कराए ने सारे न्यूमेरिकल्स ही हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी फिर भी अगर कोई कदा क्वेश्चन ऐसा होया ना सॉल्व होया ठीक है तो तुम मैसेज कर दिओ नैक्सट लैक्चर के आप रेजिस्टेंस कॉम्बीनेशन के न्यूमेरिकल्स करांगे तो एक वीडियो मैं तुहानू दस रहा मैं लास्ट फिर एक्सप्लेन करूँगा
एक आप EMF ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਹਜੇ ਮਤਲਬ ਲੈਕਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਕੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ, ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹਜੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਹੋਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ, ਸਟੇ ਸੇਫ।